Hello students, today we'll discuss about Python functions. So what do we mean by a function? A function is a block of code which only runs when it is called. Okay, so let's see a block of code which only runs when it is called. So let's do some programming. Uh, but before diving into the programming, let's see the syntax of creating a function. You have to write DEF definition, so short form DEF, then the name of the function, then you have to give parenthesis, then this sign colon, then what is the function body. Okay, so I'm writing DEF. I'm giving my function DEF, my function, then I'm writing print my name is Satya. Okay, so in this program, what I did, I defined a function whose name is my function, and I have written a single statement inside the function that is a print statement. So let's do call the function. How to call the function? Simply write the name. Okay, I'm writing the name, my function. Okay, so when I'm executing this program, what happens? In this line, it is known as function calling. It is known as function calling. It is function body, function body. This is function definition, function declaration. So basically, you can say function declaration, then it is the definition where I am including the body, then it is the function calling. So that means first declare a function, then define that function, then call that function. Okay, these are the basic operations you have to deal with functions. So let's see what is argument. Argument means, suppose I will change this program. Okay, suppose I'm writing here def my func one. I'm giving another my func one. I'm saying here a name will come as an argument. Then I'm saying print. Okay, I'm saying print HELLO plus the name. Then I'm saying I'm calling the function. What is the function name? My func func one. So what open my func. Okay. Here what happens? Here I have to pass the argument. So let's do this for you. My function Satya. Just imagine the outer and okay. So what I am saying here. So let's do this again. Okay, for this example. Uh, Here what happens? Here I am writing a function, my function. The name is my function, and I am expecting an argument. This is known as argument. In function, arguments which will come to the function. Okay, argument, and arguments are placed in the parenthesis only.
So a function is basically two types. It is not having arguments or it is having arguments. But here this function is having argument. Argument means it will receive, then the body will get executed. So fname will be received. Okay, so here I am calling the function. Here, here I am calling the function. Okay, so here I'm calling the function. So what am I doing? Calling the function means I'm passing email. Then okay, let's run this. So what happens? I'm passing email. So email represents, Tobias represents, Linus represents, email represents. That means what? Whatever the arguments I am passing, the function is printing that argument plus this one. So here I'm trying to figuring out what the error I have committed. Why is it not okay? Okay, so now is it it's working. So here I'm the problem is what the problem I was facing. If you will give a space here, then it will throw an error. And what is the error? Uni then the unident does not match any outer indentation level. Indentation level means it is getting confused. This my function is what? It's a statement whether it comes under the under this my function one function. Okay, so do like this. So I can say this is the process of separating this thing. Look, so that means this is a part of this is a function. It is the body and it is the function calling. Now it will get wrong. Okay, so now arbitrary arguments. What is meaning the arbitrary arguments? So let's do another example of arguments. Actually, diff sum. Okay, I will declare a function sum, or I will addition, and I will x. I will pass x argument. Then I will say print. Okay, print hello. Okay, then I'm writing. I'm first I declared a function named the addition. Okay, and what is the body I have written here? I have written print hello plus x, whatever I will pass as the argument. Here x is the argument, so I will call the function addition 2. So now wait. It is saying x is not defined, right? So I can say number. A number will be there. That number is here, and it will be here. Hello plus number can only contain a string, not int. Okay. So my concern is that I wrote a function, and here what I did, I pass an argument. It went into the function and processed inside the function. And once I will call the function, I'm calling. This is the calling function calling. Once I will call the function, अगर हम function को call करेंगे, तो ही function execute होगा. जैसे कि ये वाला प्रोग्राम आप देख सकते हैं. ये जो आर्बिटरी आर्गुमेंट्स है, आर्बिटरी आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कितना आर्गुमेंट्स आएगा हमें पता ही नहीं है. तो इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू फंक्शन, देन आपको एक आस्ट्रिक मार्क लगाना पड़ेगा आर्गुमेंट से पहले. जैसे कि ये वाले प्रोग्राम में हम आस्ट्रिक लगा रहे हैं, तो इसका मतलब किड्स डाल दिया और आर्गुमेंट के सामने हम एक आस्ट्रिक मार्क डाल दिए. तो अभी देखिए 1 2 3 आर्गुमेंट जा रहा है, हमें पता नहीं था कितना आर्गुमेंट जाएगा, तो हम डाल दिए. ओके, सो ये क्या हो रहा है अब.
तीन आर्गुमेंट गया, लेकिन फंक्शन में देखिए प्रिंट में क्या स्टेटमेंट है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज किड्स ऑफ टू। किड्स ऑफ टू का मतलब क्या है, किड्स जो लिस्ट है उसका सेकंड में कौन रहेगा, लिनस। तो लिनस सही मायने में प्रिंट होगा, द यंगेस्ट चाइल्ड इज लिनस। तो हियर इतने सारे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं है, तो हम सिंगल एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं। अगर बहुत सारे आर्गुमेंट आएंगे, जैसे कि यू कैन ऑल्सो सेंड आर्गुमेंट विथ की वैल्यू सिंटैक्स, और आपको ये पता भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि की वैल्यू सिंटैक्स क्या होता है, मतलब हम पढ़े थे की वैल्यू क्या होती है, एक एक की के लिए एक एक वैल्यूज रहती है। जैसे कि यहाँ एक फंक्शन हम ले लिए, तो फंक्शन में आर्गुमेंट चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, टू, वन, तीन आर्गुमेंट्स है। और पेंट में तो यंगेस्ट चाइल्ड इज प्लस चाइल्ड थ्री, और उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन में, चाइल्ड वन की जगह ईमेल, चाइल्ड टू की जगह ये, चाइल्ड थ्री की जगह ये, लेकिन चाइल्ड थ्री जाएगा। तो लिनस बस चाइल्ड थ्री का जो हम सेट किए वही आर्गुमेंट पास हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम की वैल्यू कर रहे हैं, एक की की जगह एक वैल्यू, एक की की जगह एक वैल्यू, चाइल्ड थ्री का भी एक वैल्यू दे दिए। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड, हम दो वाला स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अगर हमें आर्गुमेंट का नंबर पता नहीं है, जैसे कि हम पहले बार एक स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग में डिफरेंस ये है, एक स्ट्रिंग आप जब लेंगे, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल पास, यू ऐड ए सिंगल स्ट्रिंग बिफोर द पैरामीटर नेम एंड द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास इनटू फंक्शन, एड सेम डबल स्ट्रिंग। तो एक ही बात हुआ, अगर आपको कितना आर्गुमेंट आएगा पता नहीं है, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। Then passing a list as an argument. So here I will pass a list to a function. Okay, so let's do this. Uh, so so what am I doing? I am declaring a function, and what the name I've given here, I'm writing here, I'm declaring the function. Okay, just declaring function. It's very easy. Python is very easy, I was saying earlier. So here I declared a function. Here I am applying a for loop. Here I'm applying a for loop to print, actually. Okay, this is the print statement. This is the print statement. Okay, so my concern is that what, this is the function part, this is the list declared, this is the list. So now the name of the list is fruit. So what I can do, I can, this is the function calling I said earlier. How to know it's a function calling? Function calling indicated by writing the function name only with arguments. With arguments, that means what, arguments क्या है, arguments एक list है, list का नाम क्या है, fruits है। तो अब ये list जो है पूरा एट ए टाइम आर्गुमेंट होके यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, और जो भी आ रहा है उसमें एक लूप चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बोलेंगे सर फूड लिखा हुआ है, एक इसका कोई मतलब नहीं, फूड लिखा हुआ है मतलब फूड ही एक लिस्ट आप मान के चलिए, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं लिस्ट आएगा अब आर्गुमेंट के हिसाब से। सो आर्गुमेंट जो भी आया एक लिस्ट आया, तो व्हाट इज इट डूइंग फॉर एक्स इन दिस प्रिंट एक्स, दैट मीन्स इट विल गेट प्रिंटेड ऑल these थ्री आइटम्स, एप्पल, banana and cherry. So in this way you also can pass a list as an argument. So now here I will teach about return values. देखिए, अब फंक्शन कोई काम करेगा तो कुछ रिटर्न तो देगा ही। जैसे कि ये हम एक फंक्शन ले लिए, डिफ लिख लिए और फंक्शन का नाम ले लिए माई फंक्शन, और हम बता दिए एक से एक आर्गुमेंट आएगा, जो भी आर्गुमेंट आएगा हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटर्न 5 × x। उसका मतलब हम 3 आर्गुमेंट पास करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 पास करेंगे तो 25 आ जाएगा, 9 पास करेंगे तो 45 आएगा। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। Yeah, it's coming 15, 25, and 45 accordingly to the arguments we passed into the functions. Okay, so now let's move to the next concept, तो पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो पास स्टेटमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इजी है। फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, बट इफ फॉर सम रीजन फंक्शन डेफिनेशन विथ नो कंटेंट, पुट द पास स्टेटमेंट टू गेटिंग अवॉइड एरर। वो बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन आप खाली ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते, दैट मीन्स यू कैन डू लाइक दिस। हियर व्हाट इज द केस,
आई एम राइटिंग ए फंक्शन ओनली, डिफ माई फंक्शन, उसका हम बॉडी नहीं लिख रहे हैं, उसको हम डिक्लेयर खाली कर दिए लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एरर आ सकता है। तो हाउ टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ एरर? सिंपल राइट पास। तो पास कर देने से कंप्यूटर को पाइथन इसको इग्नोर कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। सिमिलरली, हाँ, आप ये जो दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट, रिकर्सन। रिकर्सन होता क्या है? रिकर्सन का डेफिनेशन क्या है? रिकर्सन का डेफिनेशन है व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, बस, इज नोन एज रिकर्सन। रिकर्सन मतलब घूमना होता है, बार बार घूमने को रिकर्सन बोलते हैं। मतलब एक लूप के टाइप का हो गया, एक मतलब बार बार रिपीटेटिंग काम करेगा, रिकर्सन होगा। उसके एक बात देखते हैं रिकर्सन डेफिनेशन क्या बोलता है। बोलता है रिकर्सन इज ए कॉमन मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इट मीन्स दैट ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, this has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result। मतलब डेटा के माध्यम से आप लूप कर सकते हो, डेटा के थ्रू आप लूप कर सकते हो। ओके, एंड ये बोला कि द डेवलपर शुड बी वेरी केयरफुल विथ रिकर्सन एज इट कैन बी क्वाइट इजी टू स्लीप इनटू राइटिंग ए फंक्शन which never terminates, or one that use excess amount of memory or process power. However, when written correctly, recursion can be very efficiently and mathematically elegant approach to program। ये बता रहा है कि रिकर्सन करते के टाइम आप ध्यान रखिए, अगर कुछ गलती हो गया तो इन्फिनिटी रिकर्सन हो जाएगा, मतलब कोई खत्म ही नहीं होगा। तो ये वाला तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब कब खत्म ना होने वाला प्रोसेस तो पता नहीं, इसे करना ही नहीं है। लेट्स डू सम प्रोग्राम, लेट्स फाइंड आउट फैक्टोरियल of a given number using recursion। ओके, सो रिकर्सन अभी अभी समझ में आ जाएगा रिकर्सन होता क्या है। नाउ आई एम जस्ट, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम राइटिंग ए फंक्शन नेम्ड एज फैक्टोरियल। ओके, नेम्ड एज फैक्टोरियल, देन व्हाट एम आई डूइंग, देन आई एम सेइंग इफ, ओके देख लिसन, इफ x इज इक्वल टू वन, रिटर्न वन। फैक्टोरियल का मतलब पता है? पांच का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? एक इंटू टू इंटू तीन इंटू चार इंटू ऐसे 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 करके सबको इंटू करते जाओ, पांच तक इंटू करते जाओ, उसका फैक्टर निकल जाएगा। अब ये फंक्शन में हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे कि हम यहाँ नंबर को तीन ले लिए, नंबर की जगह हम ले लेते हैं 10। अब उसके बाद रन करवा देते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल हो गया इतना 36,28,000। तो 3,00,000 सॉरी 36,28,880 हो गया फैक्टोरियल ऑफ 10। ठीक है, अब फैक्टोरियल ऑफ हम करेंगे, हम फैक्टोरियल ऑफ 4 करेंगे। तो वो फैक्टोरियल ऑफ 4 हो गया 24। कितना हो गया? 24। ठीक है, 24। सो ये प्रोग्राम काम कैसे करता है? अब देखिए फर्स्ट लाइन में हम लिख लिए, फंक्शन का नाम लिख लिए फैक्टोरियल, यहाँ पे रिकर्सन यूज हो रहा है, यही रिकर्सन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिकर्सन। इसको बोलते हैं क्या? रिकर्सन। क्यों क्यों हो रहा है देखिए। अब देखिए एक्स इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन, एल्स रिटर्न एक्स इंटू, फिर से देखिए फैक्टोरियल को कॉल किया जा रहा है और आर्गुमेंट्स एक घटा दिया जा रहा है। जो कैसे होगा देखिए, अब एक्स चार है मतलब, ठीक है, तो अब एक तो नहीं है, चार है, तो इसका मतलब चार इंटू फैक्टोरियल ऑफ तीन हो जाएगा, चार से घट जाएगा। देन क्या होगा? देन फिर से चार इंटू तीन फैक्टोरियल ऑफ दो हो जाएगा। देन चार इंटू तीन इंटू दो फैक्टोरियल ऑफ एक हो जाएगा। तो ऐसे एक घटते 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 चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ही रिकर्सन अप्लाई हो जा रहा है। देखिए ये फंक्शन के अंदर, फंक्शन यहाँ पर लिखे ना, हम यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन लिखे, तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर ही फिर से वो वाले फंक्शन को कॉल किया कर दे रहे हैं आर्गुमेंट से एक सब्सट्रैक्ट करके, इसी को ही रिकर्सन बोलते हैं। और रिकर्सन आप दो तीन और एक रिकर्सन में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। यूजिंग रिकर्सन राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम अप टू n। ओके, ये भी प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद लाम्बड़ा एक स्पेशल फंक्शन है। लाम्बड़ा जो है वो एक लाम्बड़ा क्या बोलते हैं, लाम्बड़ा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। Lambda function can take any number of argument but can have
वन एक्सप्रेशन मतलब इसका बहुत सारा आर्गुमेंट हो सकता है लेकिन एक्सप्रेशन एक ही होगा। हम मतलब नॉर्मल फंक्शन में हम बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बहुत सारे लूप्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लैम्ब्डा फंक्शन में एक ही एक्सप्रेशन लेगा लेकिन मल्टीपल आर्गुमेंट्स रहेगा। सो लेट्स सी हाउ इज इट वर्किंग। सो सिंपली अगर ये वाला देखिए, लैम्ब्डा का सिंटैक्स देखिए, लैम्ब्डा का आर्गुमेंट्स कॉलम देके एक्सप्रेशन। ओके, सो सपोज हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए अभी ये वाले देखिए, हम कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा ए देन ए प्लस 10। अब देखिए 5 का 15 आएगा आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्गुमेंट आया 5, ठीक है, और जो भी आर्गुमेंट आएगा वो 10। सो अगर हम इस 5 की जगह हम 7 कर दें तो 17 आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट व्हाई यूज लैम्ब्डा फंक्शन, हम लैम्ब्डा फंक्शन यूज क्यों करेंगे? तो पावर ऑफ लैम्ब्डा इज बेटर सोन व्हेन यू यूज देम एज एन एनोनिमस फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के जैसा यूज किया जा सकता है। से you have a function definition that takes one argument and that argument will be multiplied with unknown number। तो आपके पास एक फंक्शन है जिसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख दीजिए, ये वाला लैम्ब्डा का लास्ट है। जो आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम है माई फंक्शन, और उसका जो माई फंक्शन नाम है वो आर्गुमेंट जो ए आएगा वो ए टू द पावर एन कर देगा। ठीक है, ए को एन से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब देखिए, अब माई और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, उसमें आर्गुमेंट 2 पास किए और उसको फिर से आर्गुमेंट 11 पास किए, तो इसका आउटपुट लेके देखते हैं 22 होता है। तो पहले क्या हुआ, पहले तो हम माई फंक्शन में 2 पास किए तो माई डबलर हो गया अभी कितना, 2 पास करने से 2 हो गया माई फंक्शन लैम्ब्डा ए इंटू 2। हाँ, देन अभी माई डबलर जो है उसमें आर्गुमेंट हम 11 डालेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा आउटपुट। तो लैम्ब्डा फंक्शन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लैम्ब्डा फंक्शन जो होता है, द पावर ऑफ लैम्ब्डा इज बेटर सोन व्हेन यू यूज देम एज एनोनिमस फंक्शंस इनसाइड अनदर फंक्शन। मतलब एनोनिमस जो होता है कि पता नहीं है और एक फंक्शन हो गया, तो ये हो गया माई डबलर, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया इनसाइड अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन मतलब क्या है, पहला फंक्शन था माई फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन भी हम डाल दिए, एनोनिमस फंक्शन डाल दिए और उसमें 11 आर्गुमेंट पास कर दिए। तो लैम्ब्डा ऐसे आप याद रख सकते हो। तो बेसिकली फंक्शन में आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा। फंक्शन होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होती है, और आप कहीं पे भी लिख सकते हो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड, और वो काम कैसे करता है इसका भी याद रखना पड़ेगा। फंक्शन वर्क्स ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। अब जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब भी वो काम करेगा, बिना कॉलिंग के कोई फंक्शन काम नहीं करता। और फंक्शन में आर्गुमेंट क्या होती है, फंक्शन में जो आर्गुमेंट आता है जैसे कि यहाँ, तो वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट देती है। जो भी आर्गुमेंट्स आएगा, तो कितना आर्गुमेंट आएगा, जितना आर्गुमेंट आएगा, हो सकता है अगर आपको आर्गुमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप इसे आस्टेरिक मार्क देख के आप छोड़ सकते हैं। तो फ्यूचर में कितना भी आर्गुमेंट आएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप और एक बात याद रखिए, आप 2 आर्गुमेंट आएगा आप डिक्लेयर कर दिए और आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो भी एरर देगा। इसीलिए आप बेटर है कि आस्टेरिक मार के छोड़ देंगे, तो कितना आर्गुमेंट फंक्शन में आएगा आपको पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका फंक्शन। तो जाते जाते और एक फंक्शन का हम जैसे एक छोटा एग्जांपल लैम्ब्डा का लिए देते हैं यहाँ। तो अगर अगर हम सेम चीज को और कर देंगे यहाँ, रुकिए ये, अब 11 की जगह हम 10 पास कर देंगे तो 20 आ जाएगा आंसर। तो ये सिंपल सा बात है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा एनोनिमस फंक्शन रहेगा और उससे थ्रू में हम पहले फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जो लैम्ब्डा फंक्शन बोलते हैं उसको। So I hope in this class I could be able to clear all these concepts of function. In the very next class, we'll uh, start regarding ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन का मेन कंसेप्ट रहेगा।
और आज तक तो हम लोग सीखे लिस्ट, टपल, डेटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस आज पढ़ा है. ओके, so see you in the next class. Till then, keep practicing and do subscribe to the channel also. Thank you.